ওকে, ফাইন। আচ্ছা, আমরা তোমরা অনলাইন থাকো, আমি জাস্ট 2 মিনিট দেখি, আর যদি কেউ জয়েন করে তারপর আমরা স্টার্ট করছি, ঠিক আছে? তোমরা অনলাইন থাকো, আর জাস্ট 2 মিনিটে স্টার্ট করছি। আর এটা জল পড়ছে আবার এসিটা থেকে। হ্যাঁ, পুরো। আরে পুরোকে ধরবো তো আর পুরোপুরি পড়ছে। বলা হয়নি তো, বলবেন এরা হবে না। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে, ফাইন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল, আমরা এই সেশনটা কেন করছি এবং সেশনটার কি কারণ। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল এই সেশনটা হচ্ছে, যারা নতুন জয়েন করছে, এই সেশনটা আগেও একদিন হয়েছিল, ঠিক আছে? এই সেশনটা আমাদের ইন্টারভিউর কিছু টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের ওপর আমরা এই সেশনটা অর্গানাইজ করেছি, ঠিক আছে? ইন্টারভিউ প্রসেস কীভাবে কী হয়, ঠিক আছে? কীভাবে অ্যান্সার করবে, কোয়েশ্চেন কীভাবে আসবে, টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন কী কী হতে পারে, কী কী ইন্টারভিউতে কী কাজ করতে হতে পারে। তো ওভারঅল ইন্টারভিউ রিলেটেড যে প্রসেস, তার ওপর আর কি এই সেশনটা হবে, ঠিক আছে? এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটা নিয়ে? জিনিসটা বুঝতে পেরেছো সবাই, যে জিনিসটা কেন তোমরা জয়েন করেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমরা হ্যাঁ সবাই স্যার। তো ওই সবাই এখানে ওয়েবের স্টুডেন্টই আছো আশা করি। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। এবার তোমাদের ক্লাস কতদূর হচ্ছে? তোমরা কে কতদূর কি ক্লাস করেছো তোমরা এখনো অবধি? মৌমিতা স্যার রায়। আমার স্যার এখন আমার বুস্ট্র্যাপ চলছে। বুটস্ট্র্যাপ চলছে, মানে স্যার তোমার আমার অনেকটাই হয়ে গেছে। জাভাস্ক্রিপ্ট চলছে। তোমার জাভাস্ক্রিপ্ট চলছে। আর স্যার বাকিরা? আমার জাভাস্ক্রিপ্ট। বাকিরা হ্যাঁ স্যার, আমার রিয়াক্ট চলছে, রিয়াক্ট হয়ে গেছে। রিয়াক্ট চলছে, মানে আর তোমরা অনেকটাই করে ফেলেছো, হ্যাঁ, মানে তোমরা কেউ নতুন নও আর কি, তাই তো? তোমরা হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা, বাকিরা বাকিরা যে আছে। স্যার আমি নতুন আছি। আচ্ছা, আমার জাস্ট অ্যাডব ইলাস্ট্রেটর শেষ হয়েছে, নেক্সট উইক থেকে আমার এইচটিএমএল স্টার্ট হবে। ভেরি গুড, খুব ভালো। আচ্ছা, জাস্ট ইন্টারভিউটা শুরু হওয়ার, মানে শুরু হতে না হতেই আমাদের একটা ওয়েবে রিসেন্টলি একটা ভ্যাকেন্সি আমি দেখতে পেলাম, একটু আগেই এসছে, মানে 5 মিনিট, তোমাদের জাস্ট ইন্টারভিউটা এই টেকনিক্যালাইজেশনটা শুরু হবার 5 মিনিট আগেই একটা ভ্যাকেন্সি এসছে। আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, এটা হয়তো প্লেসমেন্ট পোর্টালে তোমাদের পোস্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি একটু দেখাচ্ছি। এবার এই এই ভ্যাকেন্সি কীভাবে হয়, কীভাবে আসে, কি হয়, এগুলোর উপর একটু ডিসকাস করবো আমরা। দেখো, রিসেন্টলি আমার কাছে একটা মেল এসছে, মেলটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা? স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইখানে বলছে পজিশান হচ্ছে 10 জন নেবে। কী কী রেজিগনেশন নেবে? একটা হচ্ছে ব্যাক এন্ডে নেবে, ওয়েবসাইট ডিজাইনার নেবে, আর অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার নেবে, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করবো হচ্ছে কিসে? ওয়েবসাইট ডিজাইনার পজিশানে, তাই তো? আচ্ছা, এটার অফিসটা হচ্ছে গড়িয়াতে, ঠিক আছে? খুব একটা বেশি দূর নয়, কাছাকাছির মধ্যেই আছে, কলকাতার মধ্যেই। এখানে কী কী চেয়েছে? এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভাস্ক্রিপ্ট, বুটস্ট্র্যাপ, টেলউইন্ড, জেকোয়ারি, আর ফিগমা। এর মধ্যে আর ফটোশপ। যারা মোটামুটি বুটস্ট্র্যাপ অবধি করেছো, রিয়াক্ট অবধি করেছো, এখানে এরম কোনোটা আছে যেটা তোমরা জানো না? স্যার বলছিলাম, আমি এই অ্যাডভান্স সিএসএস মোটামুটি জানি, মানে হালকা হালকা, খুব কোনটা? ভালো জানি। কোনটা? টেলওয়ান সিএসএস যেটা আছে। টেলউইন্ড, টেলওয়ান, টেলউইন্ড, টেলউইন্ড, টেলউইন্ড সিএসএস। হ্যাঁ টেলউইন। টেলউইন্ড টেলউইন, সিএসএস কে আমি পরে হ্যাঁ। ডিসকাস করছি সেটা, জানি ঠিক না। আছে? স্যার আমারও টেলবিন সিএসএস হয়নি এখনো। আচ্ছা, টেলউইন সিএসএস আমাদের সিলেবাসে নেই, ঠিক আছে? আমি বলছি এবার কেন নেই, বাকি টেলউইন সিএসএস কি আমরা সেটার সম্বন্ধে ডিসকাস করছি। প্রথম, এছাড়া 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 বাকি কেউ সিএসএস ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট জানো তো? এইটা জানো হ্যাঁ তো? স্যার। তাহলে তোমরা এইটাও জানো। হুম। হ্যাঁ স্যার। এইটা আর এইটার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য কিছু নেই।
এবার দুটোর মধ্যে কী জিনিস কেন কী আছে আমরা ডিসকাস করছি এটা নিয়ে। তাহলে আমরা যে জব ডেসক্রিপশানে যেগুলো এসছে তাহলে আমরা মোটামুটি সবগুলোই জানি এখানে, ঠিক আছে। টেলভিন সিএসএস আর সিএসএস এর মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, একই প্রপার্টিগুলো একই, শুধু লিখতে অন্যরকম হবে। সিএসএস এর একটা ফাইল হয়, টেলভিন এইচটিএমএল এর মধ্যে লিখতে হয়, কিন্তু প্রপার্টিগুলো সেম, আলাদা কিছু না, ঠিক আছে। সুতরাং যদি কেউ সিএসএস জানে তাহলে সে টেলভিন সিএসএস তার শিখতে 2 ঘন্টা লাগবে, ঠিক আছে। জাস্ট স্টাইলটা, লেখার স্টাইলটা ইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু সিএসএস প্রপার্টিগুলো সেমই। তো এরকম নয় যে টেলভিন আমরা স্যার নতুন কিছু, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ বলছিলাম স্যার এটা তো একটা ফ্রেমওয়ার্ক না সিএসএস এর টেলিগ্রাম হ্যাঁ, যেটা। টেলভিন সিএসএস এর ফ্রেমওয়ার্ক বলবো না, এটা হচ্ছে মানে তুই সিএসএস, আমি ডিসকাস করছি এটা নিয়ে, ঠিক আছে। এটা আমি ডিসকাস করছি, টেলভিন নিয়ে ডিসকাস করছি আমি তোমাদের ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা। এই তাহলে আমাদের জব ডেজ, তাহলে আশা করি আমরা যারা যারা করেছি প্রত্যেকে, আমরা বুটস্ট্র্যাপ অবধি করেছি স্যার সবাই, তাহলে সবাই নিশ্চয়ই এই জবটাই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো নিশ্চয়ই। তাহলে এরকম আমাদের কিন্তু হ্যাঁ, স্যার। আমাদের কিন্তু এরকম কন্টিনিউয়াস জব আসতেই থাকে। তাহলে তাহলে কয়েকটা জিনিস একটু বলে নিই যে জব অ্যাপ্লাই কখন করবো, কখন আমরা করতে পারবো, তার একটা ক্রাইটেরিয়া আছে। এখানে আমরা যখন খুশি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, ঠিক আছে। আমি স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করছি, এবার বলছি। আমরা যখন খুশি জবে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, আমাদের জবে অ্যাপ্লাই করার একটা টাইম আছে। টাইমটা কি? টাইমটা হচ্ছে তোমার যে ক্লাসটা থাকবে, ধরো তোমার 120 নাম্বার ক্লাস আছে, তার যখন তোমার 110 নাম্বার ক্লাস হয়ে যাবে, ঠিক আছে, তারপর থেকে ইউ আর এলিজিবল ফর প্লেসমেন্ট। ধরো তোমার এখন 70 নম্বর ক্লাস হচ্ছে বা 80 নম্বর ক্লাস হচ্ছে, আর তুমি এই সব জিনিসগুলোই জানো এবং একটা জব এলো, তুমি অ্যাপ্লাই কিন্তু করতে পারবে না। তোমাকে অ্যাপ্লাই আমরা করার টাইম হবে যখন তোমার কিন্তু একটা সার্টেন ক্লাসেস হয়ে যাবে, তারপরেই। জিনিসটা বুঝতে পারলে কি? ঠিক আছে। কিন্তু এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে স্যার ঠিক আছে, তাহলে তো আমরা এই মুহূর্তে আমরা তো ধরো অ্যাপ্লাই করতে পারছি না, বা আমাদের তো এখনো ক্লাস বাকি আছে, আমাদের কারো ক্লাস 50 নম্বর হয়েছে, কারো 10 নম্বর হয়েছে, কারো 80 নম্বর হয়েছে, বিভিন্ন স্টুডেন্ট বিভিন্ন রকম ক্লাস নাম্বারে আছো। তাহলে স্যার আমরা কি করব? আমরা করব হচ্ছে আমরা এখন থেকেই ইন্টারভিউর জন্য প্র্যাকটিস স্টার্ট করে দেব। যাদের জাভাস্ক্রিপ্ট স্টার্ট শেষ হয়ে গেছে এবং যারা বুটস্ট্র্যাপে ঢুকে গেছে। हेलो হ্যাঁ हेलो হ্যাঁ বলো। सर प्लीज हिंदी में बोलिए। अच्छा ओके। तो पूजा प्रिया कौन सा ब्रांच में हो तुम? प्रिया कौन सा ब्रांच का? सर थाने। थाने। ओके ओके ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के यहाँ पर देखिए जॉब ऐसा हम लोग का आता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जिसका क्लास नंबर, मान लीजिए आप लोगों को 120 क्लास नंबर है, हम लोग 110 जब हम लोग क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें एलिजिबल होंगे फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या है, अब जिसका क्लास नंबर मान लीजिए किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, किसी का 80 है, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये तो हम लोग अभी तो एलिजिबल नहीं है प्लेसमेंट के लिए। अभी तो उन लोगों का क्लास बहुत सारा बाकी है, उसको वर्डप्रेस सीखना है, उसको होस्टिंग सीखना है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखना है, एलिमेंटर, बहुत सारा कुछ बाकी है उन लोगों का, तो वो लोग अभी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। मगर क्या है, जिसका क्लास नंबर मान लीजिए जावास्क्रिप्ट जिसका ख़त्म हो गया है, वो खुद से स्टार्ट कर दे फॉर प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे कि अगर इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे हम लोग को बात करना है, कैसे हम लोग को काम करना है, कैसे हम लोग को मशीन टेस्ट देना है, ये सारा यहाँ पर हम लोगों को धीरे धीरे सब पहले से ही, जिसका क्लास नंबर 50-60 हो गया है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देना चाहिए उन लोगों को, ठीक है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, क्योंकि जब जॉब आएगा, इंटरव्यू के जब तुम लोग एलिजिबल होगे फॉर प्लेसमेंट, और जॉब अगर मान लीजिए आपके पास कोई जॉब आया और आप लोग उस दिन से प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट किए, तो ऐसा हो सकता है कि पहला इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए, दूसरा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये रिजेक्शन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही इंटरव्यू के लिए हम लोग खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देंगे कि जैसे ही हम लोग का जॉब वैकेंसी आए, हम लोग उसमें इंटरव्यू दे और जल्दी से जल्दी उसको क्रैक करके जॉब में ज्वाइन कर जाए। हम लोग का गोल तो यही है ना। क्या है हम लोग का गोल, क्या है, हम लोग ये कोर्स कर क्यों रहे हैं? जॉब लेना। जॉब लेना। तो जॉब, तो अगर यहाँ पर देखो, अगर जॉब आ रहा है यहाँ पर 10 पोजीशन के लिए, यहाँ पर जॉब आ रहा है, मतलब 10 स्टूडेंट जिसका कोर्स खत्म हुआ वो जॉब, अगर वो लोग प्रॉपरली प्रिपेयर रहे पहले से,
ऐसा नहीं कि भाई कोर्स खत्म किया उसके बाद इंटरव्यू के लिए अलग से, ऐसा नहीं है। कोर्स करते करते ही ऐसा काम करता रहे, ऐसा ही अच्छे से काम करता रहे कि वो लोग जैसे ही जॉब आए वो लोग रेडी हो और इंटरव्यू दे, इंटरव्यू क्रैक के रहे और जॉब में ज्वाइन करे। ठीक है। হ্যাঁ সুরজিৎ কি বলছো বলো। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ। স্যার বলছি আমার 110 নম্বর ক্লাস ক্রস করে গেছে। হুম তো আমি অ্যাপ্লাই করার জন্য দেখছিলাম পোর্টালে, হুম। কিন্তু ওখানে তো স্যার শরীর আপলোড করতে বলছে। হ্যাঁ তো তোমার ড্রাইভ লিঙ্কটা আপলোড করে দাও, যেখানে তুমি প্রজেক্টগুলো কমপ্লিট করেছো তার। আচ্ছা, ওইটা শরীর। হ্যাঁ ড্রাইভ লিঙ্কগুলো। ও আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আর আছে। তুমি কোন ব্রাঞ্চের? আমি স্যার এখন আছি চৌরঙ্গিতে। তো স্যারকে বলো, বিজিতেশ বা গৌরব স্যারকে বলো যে নেটলিফাই বলে একটা অ্যাপ আছে, বা তুমিও দেখে নিতে পারো স্যার একটু। অ্যাকচুয়ালি স্যার একটা জিনিস আমাদের প্রবলেম হচ্ছে, নেকলিফাই প্রবলেম হচ্ছে, লগ ইন হচ্ছিল না। ওটা একবার একটু देखो वो কিভাবে সলভ করতে হয়, तो थोड़ा एक बार देख लो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। नेटलीफाई में तो लॉगिन होना अच्छा चाहिए, क्यों नहीं अच्छा होना? अच्छा मैं एक बार ट्राई करता हूँ, उसके बाद ये लास्ट सेशन में एक अच्छा, बार नहीं अपलोड हो कर। रहा था, मतलब पहले भी ट्राई किया था मैंने, लेकिन नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है, एक बार देखते हैं, नहीं होगा तो देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है। अच्छा और अगर नहीं नेटलीफाई का लिंक नहीं है तो ड्राइव लिंक में तुम्हारा जो ड्राइव लिंक है वो अपलोड कर दो, स्टोरी लिंक में हो जाएगा। ठीक है। और इस जॉब के लिए, ओके इस सर। जॉब के लिए प्रिपेयर करो, ये जॉब अच्छा है एकदम, साउथ साउथ कलकत्ता में है, जाने आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हाँ हाँ, गरिया मेट्रो में कनेक्टिविटी है, तो अच्छा लोकेशन है। ठीक है। इस जॉब को अच्छी तरह से ठीक है प्रैक्टिस सर, करो ठीक और अच्छी तरह से इसको क्रैक करके ज्वाइन करो। है, ठीक है। ठीक है सर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखिए अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी उस दिन आएगा हम लोग उस दिन के लिए प्रिपेयर रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो काम, तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है। ठीक है। वो आपको बोल के नहीं आएगा कि आज अपॉर्चुनिटी आएगा, कल अपॉर्चुनिटी आएगा, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है जॉब का, अच्छा कंपनी कभी भी आ सकता है, तो हम लोगों को प्रिपेयर रहना है पहले दिन से। ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो कोर्स में जब एडमिशन लिए हैं, हम लोग का एक गोल है कि हम लोग जब कोर्स ख़त्म करेंगे, हम लोग का गोल क्या है, हम लोग को एक जॉब मिलना है, एक नौकरी मिलना है, अच्छा अच्छा प्रॉपर। वहाँ पर हम लोग काम सीखेंगे, 1-2 साल काम करेंगे, उसके बाद दूसरा कंपनी जाएंगे और भी काम करेंगे, सैलरी मिलेगा, सारा जो हम लोग का लाइफ सेट है। यही तो हम लोग की इसीलिए कि तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोग क्यों यहाँ पर इतना टाइम पैसा सारा हमारा एनर्जी एफर्ट सारा यहाँ पर लगा रहे हैं कि हम लोग का एक गोल है कि हम लोग को जॉब मिला है। अगर जॉब मिलना है तो जॉब के लिए हम लोग को भी तो कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि खुद कंपनी जाके आपको जॉब दे दे के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों को भी तो रेडी रहना पड़ेगा, हम लोगों को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हम लोगों को भी प्रिपरेशन देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कोर्स के साथ साथ हम लोग उसको भी करेंगे। हम लोग का काम जो हम लोग प्रोजेक्ट दे रहे हैं और दूसरा और भी हम लोग काम करेंगे, उसको सर को दिखाएंगे। तो ये एक प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, अभी से ही स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये मान लीजिए आपको जॉब आ गया, आपको यहाँ पर बोलेगा कि आपको इस टाइम में मशीन टेस्ट देके ये काम करके देना है, तो वहाँ पर आपको तो उसको अगर आप उस दिन से ही स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन करना या सीरियस होके काम करना, तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों का मान लीजिए कोडिंग मतलब जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप स्टार्ट हो गया है या बूटस्ट्रैप में हम लोग काम सीख गए हैं, तो एकदम फ्रीक्वेंटली काम करना स्टार्ट कर दो। हर दिन एवरी डे एक डिज़ाइन और एक कोडिंग रिस्पॉन्सिव, ये सारा हम लोगों को एकदम करना होगा। उसके साथ साथ हम लोग जब वर्डप्रेस सीखेंगे, हम लोग को वर्डप्रेस में भी काम वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। वर्डप्रेस में हम लोग एलिमेंटर से हम लोग वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम लोग का यहाँ पर मतलब ये एकदम आपको एकदम मेंटेन करके रखना है। अगर कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी हो, हम लोग इसको आसानी से कर पाए, और क्वालिटी मेंटेन करके, और टाइम मैनेजमेंट हम लोगों का सबसे यहाँ पर स्टूडेंट लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। ये हम लोग का टाइम मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं रहता। हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम एक 7 दिन एक प्रोजेक्ट के ऊपर 7 दिन करके हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, 10 दिन उसको कोडिंग कर रहे हैं। कोई यहाँ पर टाइम का लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में आइडिया नहीं रहता है हम लोग का। मगर जब आप कोई कंपनी में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर आप जो मशीन टेस्ट में आपको बैठाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको बोल देगा कि यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क विद इन अ सेवरल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एक पर्टिकुलर एक टाइम दे देगा कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर, जो आपका उसका ड्यूरेशन उन लोगों को सही लगेगा कि इस काम करने के लिए ये ड्यूरेशन सही है, तो उस ड्यूरेशन आपको बोल देगा। अब चैलेंज यही है कि आपको उस पर्टिकुलर
टाइम ड्यूरेशन में वो काम को ख़त्म करके आना है। जब आप लोग सभी कोई अच्छा काम करते हो, अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो, सब कुछ बढ़िया है, मगर जब आप बनाते हो या डिज़ाइन करते हो प्रोजेक्ट के लिए, तब वहाँ पर टाइम का कोई लिमिटेशन या बाउंडेशन नहीं रहता है। आप लोग अपने हिसाब से एक डिज़ाइन कर रहे हो, उसको डिलीट कर रहे हो, फिर कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कोडिंग में गलती कर रहे हो, उसको देख रहे हो, इंटरनेट से देख रहे हो, मतलब बहुत सारा उसके ऊपर आप काम करके टाइम यूज़ करके आप वो प्रोजेक्ट बना रहे हो, और प्रोजेक्ट अच्छा भी हो रहा है। मैं प्रोजेक्ट जब देख रहा हूँ तो मेरे को तो पता नहीं कि वो तो आप लोग बोल नहीं दे रहे हो कि मैं ये 3 घंटे में बनाया, कि 5 घंटे में बनाया, कि 7 घंटे में बनाया, कि 7 दिन बनाया, कि 10 दिन बनाया, कि 1 महीने में बनाया। वहाँ पर तो टाइम में तो मेजर नहीं कर पा रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपका प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। मगर कंपनी जब आपको काम पे रखेगा, आपका जब इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर वो दो चीज़ देखेगा। एक क्वालिटी देखेगा कि आप कैसा काम करते हो, और दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप टाइम में काम खत्म कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये टाइम मैनेजमेंट जो एक दिन में कभी नहीं आएगा। ये धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा काम के ऊपर फोकस करोगे, टाइम उतना कम होता रहेगा। आप मान लीजिए पहला जो वेबसाइट आप लोग बना रहे हो वो जितने टाइम में बन रहा है, दूसरा उससे कम में बनेगा, तीसरा उससे भी कम बनेगा, चौथा उससे कम में बनेगा, ऐसे सो ऑन। जितना आगे तुम बढ़ते रहोगे, जितना अच्छा प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना आपका उसके ऊपर तुम फोकस करते रहोगे, टाइम उतना क्या होगा तुम्हारा कम होता जाएगा। टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओगे। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। डिजाइन के लिए, डिजाइन तो हम लोग को बनाना ही है। तो जो लोग पहले पहला स्टार्ट कर रहे हैं वो अभी टाइम के बारे में मत सोचिए, सिर्फ काम का क्वालिटी के बारे में सोचिए। मगर जो लोग काम सीख गए हैं, प्रोजेक्ट बना लिए हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप सारा सीख गए हो, वो लोग टाइम के बारे में सोचिए अभी, कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी क्वालिटी काम को ख़त्म करके सबमिट करना है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको इन्फिनिटी टाइम नहीं देगा कोई प्रोजेक्ट के लिए। तो दिस इज द मेन की, टाइम मैनेजमेंट। बहुत ऐसा है स्टूडेंट जो बहुत अच्छा काम करता है, मगर वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए इंटरव्यू में वो लोग रिजेक्ट कर जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। कंपनी उन लोगों को हायर नहीं करता क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं करना जानते। टाइम मैनेजमेंट इज अ की थिंग इन दिस इंडस्ट्री, कि आपको एक डेडलाइन दिया जाएगा कि आपको ये डेडलाइन में काम को ख़त्म करके आपको देना है। तो वो जैसे ही डेडलाइन में आपको ख़त्म करना है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके सारा चीज़ को बना के प्रॉपरली उसको हैंडल करके आपको सबमिट करना है, क्वालिटी के साथ देना है। ऐसा नहीं है कि आप कैसी भी तरह से बना लिए वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है? यहाँ पर क्यों कुछ बोलबे? नो सर। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे? यहाँ से हम लोग ये सीखे कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है। कोई भी अच्छा कंपनी का जॉब आपको पूछ के नहीं निकालेगा, ठीक है? आपको पूछ के नहीं निकालेगा, वो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? কি করতে হবে? टाइम मैनेज রেডি টাইম থাকতে ম্যানেজমেন্ট হবে। শিখতে হবে। না না, টাইম ম্যানেজমেন্টটা রেডি থাকতে হবে, রেডি ফর এভরিথিং। क्वालिटी वर्क, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ थोड़ा सॉफ्ट स्किल, कैसे बात करते हैं वो, मतलब सारा, मतलब इंटरव्यू प्रिपेयर होकर रहना है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब आप कोर्स में एनरोल किए, जैसे कोई एक स्टूडेंट है हम लोग का अनन्या, वो अभी स्टार्ट की है, उसका सिर्फ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर अभी से, अभी उन लोगों को इंटरव्यू प्रिपरेशन में अभी फोकस नहीं करना है, क्योंकि उसको बाद में टाइम मिलेगा। अभी जो नया इनरोल हुआ है स्टूडेंट, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को अपना काम अच्छे से सीखना है, प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना है, और काम का क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। जो लोग 50, 60, 70 क्लासेस कर लिए हैं, उन लोगों को अभी इंटरव्यू के बारे में सोचना है, इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना है। इंटरव्यू के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, वो चीज़ हम लोग को फोकस करना है। क्वालिटी काम चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, बात करने आना चाहिए, ठीक है। तो जो जो एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हम लोगों को लगता है, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। उसके साथ साथ उसका टेक्निकल स्किल भी उसका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका सॉफ्ट स्किल भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग का यहाँ पर है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं जो हम लोग का क्वेश्चन, जो हम लोग का लास्ट आप लोग को वैकेंसी हम लोग दिखाए थे, जिसमें हम लोग क्या है,
एक नया नया टर्म सुने हैं, टेलविंड सीएसएस। किसी को टेलविंड सीएसएस आता है या कोई आइडिया है किसी को? बाकी तो हम लोग जो चीज हम लोग का सिलेबस में सारा हम लोग सिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि वही जो ही हम लोग सिखाते हैं वही हम लोग का रिक्वायरमेंट है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery सारा हम लोग सिखाते हैं यहाँ पर, तो वही चीज़ हम लोग को लगेगा। सिर्फ एक नया टर्म हम लोग यहाँ पर सुने, टेलविंड। तो मैं क्या करूँगा, देखिए टेलविंड CSS क्या है मैं आप लोगों को आज समझा देता हूँ, और टेलविंड CSS कैसे यूज़ करते हैं मैं कोई एक सेमिनार लेके आप लोगों को सिखा दूंगा अलग से। तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कब ये सेमिनार होगा टेलविंड CSS का, ठीक है। आप लोग उसमें ज्वाइन कर जाना। टेलविंड CSS 2 घंटे का काम है, ठीक है। एक सेमिनार में पूरा टेलविंड CSS आपको सिखा दूंगा, क्योंकि टेलविंड CSS में आपको सिर्फ हाउ टू राइट टेलविंड CSS वो सिखाना है। मगर जो लोग CSS जानते हैं, कि वो CSS का कोर जानते हैं कि व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज तुम्हारा CSS का जो प्रॉपर्टीज है सारा, ठीक है, वो अगर कोर वो सारा सब जानते हैं तो वही चीज ही टेलविंड में यूज होता है। टेलविंड क्या है? टेलविंड एक CSS का लिखने का स्टाइल है। इसको हम लोग फ्रेमवर्क भी नहीं बोलेंगे। फ्रेमवर्क, CSS का फ्रेमवर्क अगर बोलते हैं तो बूटस्ट्रैप एक CSS का फ्रेमवर्क है, ठीक है। बूटस्ट्रैप इज मोर वाइब्रेंट कंपेयर टू टेलविंड। टेलविंड में क्या होता है, टेलविंड अगर हम लोग रिएक्ट के साथ यूज करते हैं तब टेलविंड का फायदा होता है, ठीक है। मगर अगर टेलविंड को हम लोग HTML CSS में यूज करते हैं, मतलब HTML के साथ यूज करते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। टेलविंड में ज्यादा लिखना पड़ता है। अगर हम लोग नॉर्मल CSS में लिखते हैं तो हम लोगों को वो कम लिखना पड़ता है। मगर टेलविंड तुमको एडवांटेज कब देगा? टेलविंड तुमको एडवांटेज देगा रिएक्ट के टाइम, ठीक है। अगर हम लोग रिएक्ट के साथ अगर हम लोग टेलविंड को लिखते हैं तो हम लोग को थोड़ा कम लिखना पड़ता है। मगर अगर हम लोग सेम ही चीज अगर हम लोग तुम्हारा HTML के साथ लिखते हैं टेलविंड, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा लिखना पड़ता है। अब टेलविंड क्या है, कैसे लिखते हैं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे टेलविंड लिखते हैं। देखो टेलविंड कुछ नहीं है। अगर हम लोग नया जो मूपल का, जो आप लोग नया मूपल का साइट विजिट किए हो कभी? मूपल का साइट आपने विजिट किया है? नया ये जो वेबसाइट Yes, है, sir. हाँ ये जो वेबसाइट है, देखो ये वेबसाइट को अगर हम लोग Ctrl+U प्रेस करते हैं ना, Ctrl+U प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पर हम लोगों को ये जो CSS लिखा हुआ है ये टेलविंड CSS है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो तुमको एक बॉर्डर देना है, ठीक है। तो बॉर्डर कलर, ठीक है। टेक्स्ट वाइट या टेक्स्ट फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग y एक्सिस माने पैडिंग, y एक्सिस मतलब टॉप बॉटम, ठीक है, 2 वर्टिकल में। हाँ वर्टिकल। px मतलब हॉरिजॉन्टल। डिस्प्ले ब्लॉक विद 100%। होवर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर ये कलर दे दिया गया है। अब बोलो ये टेलविंड CSS है, ये क्या है, टेलविंड CSS। अब तुम बोलो इसका कौन सा प्रॉपर्टी तुमको नहीं पता है? टेक्स्ट वाइट का मतलब बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर वाइट, मतलब कलर वाइट। टेक्स्ट साइज 18 पिक्सल मतलब फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। पैडिंग टॉप बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर PY मतलब क्या है, पैडिंग टॉप बॉटम 2, PX मतलब लेफ्ट राइट 3, ब्लॉक मतलब डिस्प्ले ब्लॉक, W फुल मतलब विद 100% और होवर। तो क्या है, ये एक बटन है, ये क्या है, एक बटन है। बटन के ऊपर ये इतना। अब देखो ये हम लोग क्या है, अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कोई बता सकता है इसको देख के? अच्छा एटा ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं टेलविंड CSS क्या दिखा रहा हूं आप लोगों को? हाँ सर, हाँ हाँ एकदम। प्रॉपर्टी तो ये चीज आप लोगों को नहीं पता था? पता था ना, हम लोग तो नॉर्मल CSS में पढ़े थे। हाँ हाँ सर। तो हाँ अलग पता था। तो अलग कुछ लगा इसमें। ना सर, सेम ही चीज है, मगर क्या है यहाँ पर लिखने का स्टाइल थोड़ा क्या है, डिफरेंट है। लिखने का स्टाइल थोड़ा क्या है,
लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। अब एक चीज यहाँ पर बताओ, मान लो यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर ये इस चीज में अगर HTML में लिख रहा हूँ तो क्या है, अगर एक ही नाम का बटन, मतलब एक ही टाइप का बटन मान लो तुम्हारा 5 है, तो अगर हम लोग यहाँ पर HTML के ऊपर CSS लिखते हैं, टेलविन लिखते हैं, तो तुमको एक ही टेलविन का कोड तुमको 5 बटन में तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू आर राइटिंग ऑन द HTML। तुम HTML के ऊपर ही लिख रहे हो या इन द HTML के अंदर लिख रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा अगर 5 सेम टाइप का बटन है, देन यू हैव टू कॉपी द सेम CSS टेलविन CSS 5 टाइम्स फॉर 5 इंडिविजुअल बटन्स। मगर वहां पर अगर मैं CSS में सिर्फ एक क्लास के ऊपर ये सारा लिख रहा हूं और क्लास का नाम ही सिर्फ कॉपी कर दे रहा हूं, तो क्या होगा, उस बटन में सब कुछ हो जाएगा सेम सेम। तो तुमको कौन सा सही लगा, एक चीज 5 बार, एक ही लाइन 5 बार कॉपी करना सही लगा, या एक छोटा सा क्लास का नाम कॉपी करना तुमको सही लगा? सर क्लास नेम। বাকিরা কেউ কিছু বলছো না কেন? আচ্ছা সিএসএস যেটা সেটাই ইজি লাগছে মেরে। तो तुम्हारा तब तुम लोग का क्वेश्चन आ रहा है सर, अगर टेलविंड इतना ही खराब है, इतना बार बार लिख रहे हैं, तो हम लोग टेलविंड यूज क्यों करते हैं? यहाँ पर वहां पर कंपनी टेलविंड लिखा क्यों है? तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, यस सर। ये क्वेश्चन आना चाहिए। टेलविंड का क्या है? टेलविंड को अगर हम लोग रिएक्ट के साथ यूज करते हैं, तो रिएक्ट अगर किसी को नहीं पता है, रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर मतलब, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है। मान लीजिए यहां पर एक कार्ड है, ठीक है, यहां पर एक कार्ड है, ये कार्ड है, यहां पर एक इमेज है, ठीक है, यहां पर एक इमेज है, यहां पर टेक्स्ट है, मान लो मैं यहां पर टेक्स्ट है कुछ, यहां पर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, और यहां पर एक बटन है, ठीक है, ये कार्ड बन गया। अब यही सेम कार्ड अगर आपका आप HTML স্যার बनाओगे, স্ক্রিন শেয়ারটা অফ হয়ে গেছে। ओ सॉरी बोलबे तो कार्ड दिख रहा है अभी, कार्ड देखा যাচ্ছে, कार्ड दिख रहा है अभी? हाँ सर। হ্যাঁ 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 স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। अब अच्छी तरह से समझो टेलविंड का खेला कहां पर है, क्यों हम लोग टेलविंड यूज करें, उसका एडवांटेज क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल HTML CSS में लिखते हैं तो टेलविंड लिखना मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ तुमको मल्टीपल टाइम कॉपी कर पेस्ट करना पड़ेगा, एक ही चीज़ बार बार कॉपी, तो ये कोड का साइज भी बड़ा हो जाएगा और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तुमको एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि एक ही, अगर यही बटन तुम्हारा और किसी की जगह यूज़ करना है, तो तुमको उसके साथ साथ बार बार इतना सारा प्रॉपर्टी को भी कॉपी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी वैसा ही है, एक ही चीज बार बार, सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो रहा है और तुम्हारा बाकी ये बार। इसको अगर हम लोग ऐसा ना लिख के, अगर हम लोग क्लास को यूज करते, यहाँ पर सिर्फ क्लास नेम को यूज करते, तो हम लोग का इतना बड़ा प्रॉपर्टी मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट नहीं करना होता। समझ आया? हाँ, मगर अगर हम लोग इसको टेलविंड में करते, तो रिएक्ट के साथ करते, तो एडवांटेज क्या होता। मान लीजिए ये मेरा कार्ड है, ये कार्ड को मैं कॉपी करके दूसरा एक कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, उस HTML कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और उसका डेटा को चेंज कर देंगे। ऐसा ही करते हैं ना? हाँ सर। मान लीजिए इसका इमेज में, भाई তোমরা বুঝতে পারছো তো কেউ? হ্যাঁ মানে জিনিসটা বুঝে বলছো তো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ স্যার। ধরো, স্যার বুঝে বলছি স্যার। हाँ আমি हाँ, धरो इसका है इमेज A है और इसका है इमेज, क्या कर देंगे हम लोग, B कर देंगे। यही करते हैं ना HTML में, जी यहाँ पर हम लोग डेटा को यहाँ पर कॉपी करेंगे, इस सेम कार्ड का जो डिव है
पेरेंट डिव यहाँ से यहाँ तक कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे और डेटा को चेंज कर देंगे। मतलब इसका इमेज ए है, इसका इमेज बी होगा, इसका हेडिंग एक कुछ है, इसका हेडिंग को चेंज करके दूसरा कुछ कर देंगे, और बटन जो है नो मोर वही सेम ही रहेगा। यही तो करते हैं ना, HTML में उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं दूसरा सेक्शन में, है कि ना? सर यस सर, हाँ আমরা এভাবে করে থাকি। হ্যাঁ স্যার। স্যার হ্যাঁ। माथा ढुकेছে। अब ये यही हाँ। चीज अभी यही चीज हम लोग क्या करते हैं, यही चीज अगर हम लोग रिएक्ट में करते हैं, बाबा, हाँ, यही चीज अगर हम लोग रिएक्ट में करते हैं तो क्या करेंगे, रिएक्ट में क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं बनाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक ब्लैंक कार्ड बनाएंगे। ये जो कार्ड है इसका कोई डेटा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एक ब्लैंक कार्ड बनाएंगे। ब्लैंक कार्ड मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, ऐसे, ठीक है। एक यहाँ पर एक कार्ड का इमेज हो गया, ठीक है। अब इमेज में सिर्फ हम लोग img टैग दे देंगे, और जो डेटा रहेगा, इमेज का जो नाम रहेगा वो बाहर रहेगा। बाहर रहेगा मतलब कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा कि उसका डेटा JSON फाइल में एक डेटा रहेगा उसका। अब मान लो आपको 5 कार्ड यहाँ पर बनाना है या 6 कार्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड बनाया और कार्ड में जो इमेज का नाम है एक फाइल के अंदर मैंने रख दिया, उसको मैंने एक फाइल के अंदर रख दिया। मान लीजिए इमेज और इमेज का पाथ दे दिया। उसका जो ये जो टेक्स्ट है, इस कार्ड का टेक्स्ट मैंने एक पैराग्राफ टेक्स्ट में रख दिया, पैराग्राफ के अंदर रख दिया, और इसका जो बटन है इसको मैंने एक अलग टेक्स्ट में रख दिया। अब ये एक फाइल मैंने बना के रख दिया। तो ये जो हुआ, ये कार्ड 1 के लिए। अब कार्ड 2 के लिए मैंने एक सेम इमेज मैंने बनाया, उसका पाथ मैंने अलग रख दिया। अब क्या हो रहा है, ये डेटा मैंने अलग कार्ड के लिए अलग जगह में लिख दिया, कार्ड के अंदर मैंने डेटा को नहीं कॉल किया। अब क्या किया, अब ये जो कार्ड का जो डेटा है इसका सिर्फ यहाँ पर मैंने ब्लैंक है, तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ कार्ड के अंदर हम लोग ये डेटा को कॉल कर दिए। यहाँ पर इमेज आ गया, यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, और ये रिपीट आ गया। अब ये कार्ड मैंने एक ही बनाया है, 10 कॉपी करने का या 50 कॉपी करने का नहीं। जितना यहाँ पर डेटा मैं ऐड करते जाऊँगा, ऑटोमेटिक कार्ड वहाँ पर जनरेट होता जाएगा। अब क्या आ गया, आपको यहाँ पर 6 कार्ड का यहाँ पर डेटा मैंने रख दिया, तो ऑटोमेटिक 6 कार्ड यहाँ पर रिएक्ट में क्या होगा, जनरेट होके आ जाएगा। आपको अलग से कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा। ये सुन के आपको थोड़ा अभी सही नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोगों को रिएक्ट पता नहीं है। जब आप लोग रिएक्ट सीख जाओगे या ट्यूटोरियल देख लोगे, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि रिएक्ट में कैसे इसको जनरेट करते हैं। तो रिएक्ट का एडवांटेज क्या है, यहाँ पर हम लोग को 6 बार ये जो कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है ना, रिएक्ट में ये 6 बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है। सिर्फ एक बार आप यहाँ पर फाइल बना दीजिए और कार्ड का स्ट्रक्चर बना दीजिए और उसमें CSS लिख दीजिए, तो बाकी कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज, इसको कंपोनेंट बोलते हैं रिएक्ट में। तो अब यहाँ पर 6 बार कॉपी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको एक बार ही CSS लिखना पड़ता है। तो आप टेलविंड यूज कीजिए, आपको एक बार में ही सारा, अब अगर 100 कार्ड भी आपको जनरेट करना पड़ रहा है, HTML में आपको 100 टाइम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मगर रिएक्ट में एक बार आप लिख देंगे और CSS को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक 100 कार्ड का डेटा जनरेट करके आपको दे देगा। यही एडवांटेज रिएक्ट का है, क्योंकि आप रिपीटेटिव काम नहीं करना पड़ रहा है आप लोगों को। तो जहाँ रिपीटेटिव काम हो रहा है वहाँ पर टेलविंड काम नहीं करेगा अच्छे से, मगर जहाँ आप कार्ड को जनरेट कर रहे हो एक बार लिख के, वहाँ पर टेलविंड काम करेगा एक बार, क्योंकि आपको एक बार ही लिखना पड़ रहा है। समझ आया? मैंने समझा पाया आप लोगों को? বোঝাতে পারলাম তোমাদের? কঠিন হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছে। মাথায় হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। মাথায় ঢুকেছে জিনিসটা কি? तो रिपीटेटिव যেখানে কাজ হবে, जहां पर रिपीटेटिव काज होगा वहां पर CSS अच्छा है, ठीक है। मगर जहां पर आपको जनरेट करवा रहे हो कोई डेटा को, आपको JSON फाइल में आपका डेटा रहेगा रिपीट में, और डेटा को फेच कर रहे हो HTML में, और कार्ड को जनरेट कर रहे हो थ्रू रिएक्ट, तब वहां पर आपका टेलविंड, आप CSS भी यूज करते हो, ऐसा कोई बात नहीं कि आप CSS नहीं यूज कर सकते। CSS भी वहां पर काम सेम ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहां पर आप CSS ना लिख के आप एक ही फाइल में
टेलविंड लिख सकते हो। मगर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं CSS लिखना प्रेफर करता हूँ। मेरे को लगता है टेलविंड से, मेरे को टेलविंड भी बहुत अच्छी तरह से आता है, मगर मैं प्रेफर करता हूँ CSS लिखना, क्योंकि CSS एक अलग चीज है। HTML के फाइल के अंदर आपको स्टाइल भी आप घुसा रहे हो, उसके अंदर आप मार्कअप भी लिख रहे हो, तो किसी को लिखना वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता है। मगर पर्सनली अगर मुझसे आप पूछोगे कि आप टेलविंड प्रेफर करोगे या CSS, मैं CSS प्रेफर करूंगा, क्योंकि CSS अलग फाइल होता है, स्टाइल फाइल अलग रहेगा, मार्कअप फाइल आएगा, तो आपका जो डिजाइन है या कोडिंग है वो पूरा क्लीन रहेगा, मैं एकदम क्लीन कोडिंग रहेगा, ठीक है। मगर जहां पर आप HTML लिख रहे हो वहां पर ही आप टेलविंड भी दे रहे हो, तो वो थोड़ा क्लमजी हो जाता है, इस माई ओपिनियन। किसी को अगर टेलविंड अच्छा लगता है तो वो उसका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को जिसको टेलविंड अच्छा लगता है वो यूज कर सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर माई ओपिनियन इज CSS इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है। टेलविंड भी अच्छा है, नहीं ऐसा नहीं है कि टेलविंड नहीं है, टेलविंड में आपको बहुत मतलब यूज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। टेलविंड समझ आया टेलविंड क्या है? यस सर। हाँ मतलब सर, यस सर। आप जहां पर 90% HTML, से हाँ जहां पर आप HTML लिख रहे हो वहीं पर ही CSS लिख रहे हो, दिस इज कॉल्ड टेलविंड। और CSS फाइल में अलग आप एक स्टाइल बना रहे हो, उसके अंदर आप दे रहे हो, यही डिफरेंस है। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলো। টেকনিক্যাল রাউন্ডে কি বানাতে বলবে ডিজাইনে? এটা তো ডিপেন্ড করছে কোম্পানির উপর না, এক একটা কোম্পানি এক এক রকম জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে, এক একটা কোম্পানি এক এক রকম জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে। কেউ জিজ্ঞেস করে তোমাকে কোনো ডিজাইন দিয়ে বলবে সেটাকে HTML CSS করে দেখাও, কেউ তোমাকে একটা সিচুয়েশন দিয়ে বলবে একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে দেখাও, ঠিক আছে। যেমন রিসেন্টলি একটা আমি আমাদের একটা কোম্পানি এসেছিল, তারা বলেছিল উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ওপর কোনো ওয়েবসাইট বানাতে, যারা ধরো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ওপর কাজ করে, ঠিক আছে, যারা ধরো ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের উপর কাজ করে, মানে মহিলাদের আর কি সশক্তিকরণ যাকে বলে, ঠিক আছে, ওগুলোর ওপর একটা ওয়েবসাইট চাইছিল। তো সেরকম তোমাদের কিছু টপিক দিয়ে দিতে পারে, তার উপর ডিজাইন করে পাঠাতে হতে পারে, বা কোনো ডিজাইন দিয়ে দিতে পারে, সেটাকে কোড করতে হতে পারে। তো বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেন হতে পারে, সেগুলো আমরা পরে ডিসকাস করছি, ঠিক আছে। এই এখনো অবধি আমরা যা ডিসকাস বা আলোচনা করলাম লাস্ট 40 মিনিটসে, তার উপর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যালো স্যার। বলো সুরজিৎ, বলো। স্যার হ্যাঁ বলছি স্যার, টেলউইন্ড সিএসএস আমরা যখন ইউজ করব, সেটা মানে আমরা যেমন ইনলাইন সিএসএস লিখি তখন স্টাইলটাই ইউজ করে লিখতে হয়, আর যখন বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করি তখন একটা টেমপ্লেট এনে লিখতে হয়। তো টেলউইন্ড আমরা কি করে লিখবো, মানে এইচটিএমএল এর উপর ডাইরেক্ট লিখলে? না, টেলউইনকে না ইনস্টল করতে হয় তোমার। টেলউইনকে তুমি একটা সিডিএন আচ্ছা দিয়েও লিখতে পারো, দুভাবে হতে পারে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সিডিএন দিয়ে লেখা যায়? হ্যাঁ সিডিএন দিয়েও লিখতে পারো, কিন্তু সিডিএন দিয়ে লেখাটা ইজ নট আ রাইট ওয়ে। টেলউইনকে না ইনস্টল আচ্ছা করতে হয়, ইনস্টল, যেমন রিয়াক্টকে ইনস্টল করতে হয় তোমার লোকালে, এনপিএম দিয়ে, হুম ইনস্টল করতে হয় না, হ্যাঁ তো ওইরকম হ্যাঁ টেলউইনকে হ্যাঁ তোমার লোকাল ফাইলে ইনস্টল করতে পারো। মানে তোমার পিসিতে তোমার আচ্ছা নোট জেএস থাকতে হবে, ঠিক আছে, নোট জেএস থাকা ইনস্টল করে নেওয়ার পর তুমি টেলউইন, বাট টেলউইন ইজ অন, তুমি একটা জিনিস মাথায় রাখো, টেলউইনটা রিয়াক্টের হ্যাঁ। সাথেই কম্পাটেবল। আচ্ছা, আমরা নর্মাল যখন এইচটিএমএল বেস করব তখন টেলউইন্ড সিএসএস ইউজ করা যাবে না? যাবে না, যাবে ডেফিনেটলি, কিন্তু তোমায় মাল্টিপাল কপি পেস্ট করতে হবে একই আচ্ছা জিনিস বারবার, যেটা দেখালাম একটু আগে। আচ্ছা আচ্ছা এইখানে একটা জিনিস হ্যাঁ দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে একটা কি দেখেছে দেখো, হোম অ্যাবাউট আস এগুলো তো বাটন, কোর্সেস এগুলো তো বাটন, হ্যাঁ সেম দেখতে বাটন। হুম তো এইখানে আমি হোমের জন্য এতটা সিএসএস লিখেছে, আবার সেম একই বাটনের জন্য অ্যাবাউট আসের জন্য এতটা সিএসএস লিখেছে, আবার দেখো কেউ এখানটায় কোর্সের জন্য এতটা করে সিএস লিখেছে। তো তোমার এটা তো একটা ক্লাস দিয়েই হয়ে যেত। হ্যাঁ তো এটা যদি তুমি এইচটিএমএল এ হ্যাঁ লেখো, যদি রিপিটেটিভ থাকে, তখন আমি কি বললাম এতক্ষণ তোমায়, তুমি জিনিসটা বুঝলে হ্যাঁ না। হ্যাঁ হ্যাঁ যদি তোমার রিপিটেটিভ যদি এইচটিএমএল এ কপি পেস্ট করে তুমি যদি জেনারেট করে থাকো, তাহলে তোমার ক্ষেত্রে টেলউইন্ড ইজ নট গুড ফর ইউ। ইফ ইউ আর ইউজিং রিয়াক্ট, আচ্ছা যেখানে তুমি এলিমেন্টগুলোকে জেনারেট করাচ্ছ জেসন থেকে, সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ টেলউইন্ড ইজ ভেরি গুড ফর ইউ। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, তুমি ঠিক আছে। HTML CSS জানো,
তুমি সোজাসুজি এইচটিএমএল হ্যাঁ সিএসএস হ্যাঁ লেখো, ঠিক আছে? হুম তুমি যদি রিঅ্যাক্টের সাথে কাজ ইজি করছো, হবে ওটা। হ্যাঁ, তুমি যদি রিঅ্যাক্টের সাথে কাজ করছো, ইফ ইউ আর গোয়িং উইথ রিঅ্যাক্ট, দেন টেলউইন্ড ইজ সুটেবল হুম ফর ইউ। বাট তুমি ওইখানেও টেলউইন্ড না ইউজ করে তুমি সিএসএস ইউজ করতে পারো। আমি প্রেফার করব গো ফর সিএসএস। তবে মানে স্যার টেলউইন্ডের তাহলে এক্সট্রা লাভটা কি? টেলউইন্ড ইউজ কেন হচ্ছে? টেলউইন্ড ইউজ কেন হচ্ছে? কারণ তুমি একই জায়গায় তুমি দুটোই লিখতে পারছো। বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করতে হচ্ছে না, কারণ টেলউইন্ডের মধ্যে গ্রিড সিস্টেম দিয়ে দিয়েছে, ফ্লেভার্স দিয়ে দিয়েছে, সেই জিনিসগুলোই তুমি ওখানে ডিরেক্ট তুমি এইচটিএমএল এর মধ্যে লিখতে পারছো, আলাদা করে তোমাকে ফাইল জেনারেট করতে হচ্ছে না। আচ্ছা। জিনিসটা বুঝলে? হ্যাঁ 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 এইখানে কি হচ্ছে, তুমি বুঝলাম। একটা একটা কোডের মধ্যেই তুমি লিখে দিচ্ছ। হুম 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 এবার ধরো তোমার এখানে তখন রিয়াক্টে ওটা সুবিধা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, রিঅ্যাক্টটা তুমি জেনারেট করাচ্ছ না, তোমার তো হুম কার্ড বা হুম হুম এলিমেন্ট গুলো জেনারেট হচ্ছে জেসন থেকে। তো হ্যাঁ ওখানে হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ এক জায়গায় লিখছো, বাকি 20টাও অটোমেটিক জেনারেট করে দিচ্ছে সেম সিএসএস দিয়ে। আচ্ছা স্যার। বুঝলে? এবার তুমি কেন এটা হচ্ছে, কারণ হ্যাঁ তুমি একই জায়গায় যেখানে তুমি এইচটিএমএল লিখছো, এই যে এলআই ক্লাস লিখছো, হ্যাঁ তারপর তার বর্ডার দেওয়ার জন্য তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ সেখানেই বর্ডার জায়গায় তুমি বর্ডার কালার দিয়ে দিচ্ছ। হুম হুম তখন এক্সট্রা করে সিএসএস এ গিয়ে লিখতে হচ্ছে না। এই যেখানেই তুমি দেখো এখানে ফ্লেক্স বক্স, দেখো ফ্লেক্সের প্রপার্টিও দিয়ে দিয়েছে টেলউইন্ডে, হুম ঠিক আছে? ঠিক হ্যাঁ আছে? হ্যাঁ এখানে স্মল মিডিয়াম, হ্যাঁ এখানে দেখো মিডিয়া কোয়ারি দিয়ে দিয়েছে। এসএম মানে হচ্ছে মিডিয়া কোয়ারি লিখছে, হ্যাঁ স্মল ভিউর জন্য। আচ্ছা তো সিএসএস এর সব প্রপার্টি তুমি এইচটিএমএল এ লিখছো, এটা সুবিধা টেলউইন্ডে। আচ্ছা আচ্ছা বুঝলে? আরে ভাই, হ্যাঁ স্যার তুমি ঠিক আছে। টেলউইন্ড লেখো আর যাই লেখো, তোমাকে তো সিএসএস শিখতেই হবে, না তো তুমি টেলউইন্ড লিখবে কি করে? হ্যাঁ 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 তুমি এবিসিডি না স্যার শিখলে, ওটা তো বেস্ট, ওটা তো বেস্ট। তুমি যদি এবিসিডি না শেখো, তুমি 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 ভালো যে আমি খুব ভালো হাতের লেখায় লিখতে পারি। আরে ভাই, হাতের লেখা তোমার ভালো হতে পারে, তুমি তো লিখছো তো ইংরেজি। তুমি টেলউইন্ড লেখো আর যা খুশি লেখো, লিখছো তো সিএসএসই। ওটা তো পার্সিং হয়ে সিএসএসই রান করছে তোমার ওখানে। वहाँ तो वो तो पार्सिंग हाँ होकर सर, हाँ। सीएसएस ही रन हो रहा है। अगर तुमको सीएसएस का नॉलेज ही अच्छी तरह से नहीं है, तो तुम टेलविंड सीख के भी क्या करोगे और बाकी फ्रेमवर्क सीख के भी क्या होगा? তুমি বুঝলে কি বলছি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বুঝেছি জিনিসটা। হ্যাঁ, আর কারো কোয়েশ্চেন বলো। রামকৃষ্ণ বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম আমি বুটস্ট্র্যাপের প্রজেক্ট করছি তো কিছু, তো আমি কি জি স্যাপ ইউজ করতে পারবো? কোনটা করতে পারবে? গ্রিন শক অ্যানিমেশন যেটা, গ্রিন শক মানে নাকি? প্রজেক্টে গ্রিন শক অ্যানিমেশন বলতে? জি, কোনো রকম অ্যানিমেশন মানে স্মুথ স্ক্রোল ট্রিগার, মানে কোনো কিছু। হ্যাঁ, কেন পারবে না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে। পারবে পারবে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই, পারবে। না আর স্যার, বলো। বলছিলাম আমি প্লেসমেন্টের সাইটে গিয়েছিলাম, হুম। তো ওখানে আমাদের মানে ব্রাঞ্চের নামটা দেখতে পাচ্ছিলাম না, বিআরপি বহরমপুর। প্লেসমেন্টের সাইডে তো বহরমপুর ওরকম কোনো ব্রাঞ্চ নেই ভাই। মানে আমি যখন মানে অ্যাপ্লাই করবো কিনা তাই? জবে কোনো কিছু, তো মানে সেখানে আচ্ছা, আমি দেখছি, দাঁড়াও মানে দাঁড়াও। সেন্টারের নামটা কি? ঠিক আছে। আহ, 1 মিনিট দেখছি, দাঁড়াও। হুম, ধরো কোনো একটা জবে গেলাম, তোমাদের নাম দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, বহরমপুর ব্রাঞ্চের নামটা দেখা যায়। সেন্টার নেম বহরমপুর দেখা যাচ্ছে না? ব্যারাকপুর, আমি তো দেখতে পাচ্ছি। বর্ধমান, নির্মাণ, বিহার, তাহলে হয়তো আপডেট করা হয়নি। তুমি এটা আমাকে মেল করে দাও, আমি আপডেট করিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমাকে একটা ইমেল করে দাও। আমার ইমেল আইডি হচ্ছে ওয়েব অ্যাট দ্য রেট ওয়েব অ্যাট দ্য রেট হুম, ওয়েব অ্যাট দ্য রেট মুকুল ডাটিং। হ্যাঁ, মুপল ডট ইন। ঠিক আছে, আমাকে একটা মেল করে দাও, আমি আমি নামটা আপডেট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে? আর ঠিক বলো, আছে। আর বলো, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম এখন অবধি? আমরা তাহলে কি কি বুঝলাম এখানে? যে देखो, बार बार बोलছি, তোমরা যারা, तुम लोग का जिसका गोल है यहाँ पर कि हम लोग को इस कोर्स को करके हम लोग को जॉब लेना है, जॉब हम लोग को पाना है, ठीक है? तो मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी से जो लोग स्टार्ट किए हो, अभी जो लोग न्यू ज्वाइनिंग हो, अभी से अपना काम की क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, डेडिकेटेडली फोकस करो, ठीक है? डेडिकेटेडली फोकस करो और जितना भी हो सके प्रैक्टिस करो।
प्रैक्टिस करके सर को काम दिखाओ कि सर मैंने ये बना है, ये वो बना है, वो दिखाइए क्या प्रॉब्लम है। सर से 100 बार चीज पूछो, ठीक है। पूछ के सर से अपना सजेशन लो और उसके ऊपर उसको मॉडिफाई करके सर फिर से सर को दिखाओ। काम का क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। और जो लोग अभी तुम्हारा 60 और 70 क्लासेस हो गया है, वो लोग अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो हर तरह का। और हर दिन एटलीस्ट 4 से 5 घंटा पीसी में बैठो, क्योंकि मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि देखिए, जब आपको जॉब मिलेगा वहाँ पर आपको 8 से 9 घंटा आपको काम करना पड़ेगा वहाँ पर ऑफिस में। तो इस इज़ नॉट ए इजी टास्क कि एक दिन में आप 9 घंटा बैठ के काम करोगे। ये अगर आपको पहले से ये हैबिट हो जाता है, काम करने का हैबिट हो जाता है, तो आपको इजी लगेगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा पहले पहले। क्योंकि ये एक थोड़ा मुश्किल होता है पहले पहले बहुत जन का, कि एक टाइम में 9 आवर्स बैठ के काम करना। तो आप लोग अभी से ही जो लोग प्रैक्टिस करते हो, 4-5 घंटा दिन का कंप्यूटर में काम करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। प्रैक्टिस करके सर को दिखाओ, ठीक है, और सर से करेक्शन लो, उसको करेक्शन को इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद फिर से सर को दिखाओ और धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करो। उसके साथ साथ जितना ज़्यादा काम करोगे उतना तुम लोग अच्छी टाइम को मैनेज कर तुम लोग काम कर पाओगे। क्योंकि इंटरव्यू में कि ये 2 ही चीज़ देखा जाता है, एक है काम का क्वालिटी और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो, वो ये 2 चीज़ में ध्यान दो आप लोग। और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ है? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে আর? স্যার ইন্টারভিউ ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে? এ তো ডিপেন্ড করছে কোম্পানির ওপর। যদি কোম্পানি বাইরের কোম্পানি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইংরেজি হতে পারে, হিন্দি হতে পারে, ঠিক আছে। তো তোমাকে একটা হতে পারে, তোমাদের একটা প্রবলেম হতে পারে, হয়তো ইংরেজি হয়তো নিয়ে কারো সমস্যা হতে পারে। তো এইটাই যে বলবো যে ইংলিশকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমরা এখন থেকেই প্র্যাকটিস করা স্টার্ট করে থাকো। ইংরেজি একটু নিউজ পেপার পড়ো, একটু ইংরেজিতে তোমরা মানে কনভারসেশনগুলো শোনো, আস্তে আস্তে একটু বলার চেষ্টা করো, তাহলেই হবে। ইংরেজিতে এমন কিছু নয় যে পুরো ইংরেজ হতে হবে, এরকম ব্যাপার নয়। ইংরেজিতে বলতে লিখতে এগুলো মানে বলতে বলতে মানে মেল লিখতে বা মেল পড়তে যদি তুমি পারো ঠিকঠাক, মেল পড়ে যদি ক্লায়েন্ট কি বলছে সেটা বুঝতে পারো এবং ক্লায়েন্টকে জবাব দিতে পারো, এইটুকু ইংরেজি জানতে হবে। এমন কিন্তু নয় যে এখানে বিশাল কিছু তোমার ইনডেপথ দরকার আছে। তবে ক্লায়েন্টের সাথে বেসিক কমিউনিকেশান, মেল পড়া এবং মেলের রিপ্লাই দেওয়া, এইটুকু কিন্তু তোমাদের জানতেই হবে ইংরেজির ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। আর বলো, আর কারো কিছু কোয়েশ্চেন আছে? স্যার পোর্টফোলিও নিয়ে কিছু বলবেন? পোর্টফোলিও কি করে বানাবো? পোর্টফোলিও বানানো বলতে পোর্টফোলিওকে যত তোমরা, তো আমি একটাই তো কথা বললাম যে স্যারদের কাজ করো, কাজ করে স্যারদের দেখাও, কারেকশন দাও, কারেকশনগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করে কি বলে সেগুলোকে করে স্যারকে দেখাও। যত বেশি করতে থাকবে তোমার কাজের কোয়ালিটি ভালো হতে থাকবে, পোর্টফোলিও ততগুলো আরও ভালো হতে থাকবে। পোর্টফোলিও মানে হচ্ছে তুমি যে কাজগুলো করছো সেগুলোকে শো করা। পোর্টফোলিও তোমরা ওইগুলো দেখো, বেহান্স দেখো, ড্রিবল দেখো, ওখানে দেখো যারা ইউআই ইউএক্স ডিজাইনাররা কত সুন্দর সুন্দর নিজের পোর্টফোলিও বানিয়ে রেখেছে, সেগুলোকে একটু স্টাডি করো। ডিজাইনের পোর্টফোলিও একটা বানাও, দুটো পোর্টফোলিও বানাও, একটা ডিজাইনের, একটা কোডিংয়ের। আর কোডিংয়ে যারা যারা হোস্ট করছো তারা নেটলিফাইয়ে তোমাদের সাইটগুলোকে হোস্ট করিয়ে লিঙ্ক ক্রিয়েট করো, ঠিক আছে। পোর্টফোলিও অ্যান্ড এইগুলোর ওপর আমি নেক্সট একটা সেশনে এসে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব, ঠিক আছে। কীভাবে পোর্টফোলিও বানাবে, কীভাবে কী হবে, পোর্টফোলিওর কিছু এক্সাম্পল তোমাদের আমি দেখাবো, ठीक है। সেগুলো আমি একটা নেক্সট সেশনে করব। কিন্তু একটা बार बार বলছি, हम लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि देखो इंटरव्यू कभी भी आ सकता है, जॉब कभी भी आ सकता है। खुद को प्रिपेयर रखो, खुद को प्रैक्टिस में रखो। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रिपेयर रखो होगे, उतना आपका जॉब मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? অনন্যা, ইয়েস স্যার। অনন্যা তুমি কোন ব্রাঞ্চের? হ্যাঁ স্যার বলুন। কোন ব্রাঞ্চের? আমি চৌরঙ্গিতে আছি। ক্লাসেস কেমন চলছে? ইয়েস।
হ্যাঁ স্যার, খুব ভালো চলছে। সব বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন আপাতত খুব ভালো চলছে। গৌরব স্যার করাচ্ছেন। হুম তো স্যার খুবই ভালো। সে তো জানি। ঠিক আছে, আমি বারবার বলছি, হ্যাঁ যেহেতু তোমরা নতুন জয়েন করেছো, তোমরা কিন্তু হ্যাঁ এখন থেকেই सीरियसली प्रत्येक तुम अभी से ही सीरियसली अपना काम के ऊपर फोकस करो, ठीक है? और टाइम टाइम में प्रोजेक्ट करो, और सिर्फ प्रोजेक्ट करने से ही नहीं होगा, उसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस करो, और भी वेरियस टाइप ऑफ डिज़ाइन के ऊपर काम करो, और डिज़ाइन को देखो, सोचो, जो लोग काम कर रहे हैं उस लोगों का काम देखो, उससे तुम लोगों को आइडिया आएगा, ठीक है? तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ यही चीज़, जितना इसके ऊपर तुम लोग काम करोगे, जितना फोकस करोगे, जितना देखोगे, उतना तुम लोगों को ये आइडिया लगेगा और तुम्हारा काम उतना अच्छा होगा, ठीक है? तो आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो आज का जो सेशन हुआ इसके ऊपर? अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर इस सेशन को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग थोड़ा सोच के रखना, नेक्स्ट भी ये सेशन होगा, तब तुम लोग थोड़ा प्रिपेयर होके आना इंटरव्यू के लिए। तुम लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या तुम लोग को जानना चाहिए, वो एक क्वेश्चन बना के तुम लोग यहाँ पर ज्वाइन करना, तो तुम लोगों को ईजी रहेगा इंटरेक्शन के लिए, और जो जो तुम लोगों को जानना है डायरेक्टली मेरे से पूछ लेना, ठीक है? उसके अलावा पोर्टफोलियो के ऊपर और बाकी जो जो चीज़ है टेक्निकली, जो जो चीज़ हम लोग को इम्प्रूव करना होगा, उसके ऊपर मैं और भी तुम लोगों को थोड़ा ऐसे इस तरह का सेशन इन फ्यूचर में दूंगा, ठीक है? चलो आज का सेशन यहीं पर ही ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इस सेशन का यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है, इस सेशन का जो रिकॉर्डिंग है, जो हम लोग डिस्कस किए, वो हम लोग को ये प्लेसमेंट का जो पोर्टल है, वहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू सेशन करके एक टैब है, उसमें आपको ये सेशन का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन। काम करते रहिए और थैंक यू सर। अच्छा अच्छा काम करते रहिए, ठीक है? चलिए, बाय। थैंक यू सर।